Hello, dear children. I am here today with all of you uh, with a topic on cost. Your unit is for class 11 microeconomics. Your unit is producer behavior and supply. The first chapter in this is regarding the law of production, the various stages where a producer decides where the production will take place, and after he decides where the production will take place, the producer will now have to start with the process. So when the producer starts with the process of production, that means he has to take the help of factors of production. And when he takes the help of factors of production, obviously he has to pay them for their services. And the moment a producer starts paying factors of production for their service, the concept of cost starts. Now I am going to, like we do in the class, on a board, discussion mode, etc. So I would like to present in a very in a very lucid manner, in a very simple manner, the various concepts of cost, the various cost curves, the definition, how do you calculate them, then what are the relation between the various cost curves. Okay, so that is going to be our point of discussion today. Now, I shall definitely present our work or the basis on which we shall discuss. But while I present this, what I really want you to do, keep in mind that you are a producer. Is that fine? Like when we were doing consumer behavior, it was very, very important for you to think yourself as a consumer. Now that we are doing producer behavior, it's very, very important for you to think yourself as a producer. Because until and unless you put yourself in that particular mode, it's going to be really difficult for you to understand. तो जब वो particular concept आप अपने ऊपर लेते हैं, अपने को उस जगह पर रखते हैं, तो उसको समझना आसान हो जाता है. So this is what on your board is the topic of cost. So as a producer, आपने commodity produce करने के लिए जितना भी खर्चा किया वो आपका cost. अब इकोनॉमिक्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है. एक आप एज अ प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं, आपने फैक्टर्स बाहर से हायर किए, उनको पैसा दिया, वो आपका कॉस्ट. लेकिन वो कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो देखा जा सकता है. देखा जा सकता है कि भाई आपने लेबर लिया, लेबर को 500 रुपया दिया, तो 500 रुपया साफ साफ सामने नजर आ रहा है. ठीक है ना, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेकिन इकोनॉमिक्स में कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, जो कि हम अकाउंटिंग में नहीं लेते. वो ये है, I think you can see this. This is called as implicit cost. Implicit cost is nothing but the imputed value of inputs or the estimated value of inputs which that particular factor of production owns. ठीक है. So डॉक्टर ने अपने ही घर के एक कमरे में अपना क्लिनिक बना लिया. So जब अपने ही घर के कमरे में अपना एक क्लिनिक बना लिया, तो अगर मान लीजिए कहीं बाहर वो प्रैक्टिस करते और किराए पर लेते, तो उस क्लिनिक कमरे के लिए, क्लिनिक के लिए उन्हें किराया देना पड़ता. तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ. लेकिन उनके पास वो अपने घर में ही एक रेलेवेंट जगह अवेलेबल थी, तो वो अपने को किराया नहीं दे रहे. लेकिन मान लीजिए वो कमरा किसी और को किराए पे देते, तो इन डॉक्टर साहब को पैसा मिल जाता, या इन डॉक्टर साहब को कहीं और जाकर के कमरा किराया पर लेना पड़ता, तो उन्हें खर्चा करना पड़ता. तो जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स का इस्तेमाल करता है, उनकी मार्केट वैल्यू जो क्या है, जो उनकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू क्या है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है. सो इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो हम दोनों कॉस्ट लेते हैं. हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेते हैं और हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं. अब एक इंटरेस्टिंग कॉस्ट और आता है इकोनॉमिक्स में, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है. वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक, फैक्टर्स को एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. फैक्टर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. वी हैव डन इट राइट एट द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. So if a particular factor which has got the alternative of working in one case or second case, if this particular factor decides one and foregoes the other, leaves the other, then whatever he or she leaves is his or her opportunity cost. So that is why they say opportunity cost is the opportunity lost. Now, how can I explain it to you? Okay, say for example, Manoj Bajpayee, you all heard of him, right? The actor. Now this gentleman is basically a stage actor.
Now he has got the choice of working in a play or in a movie. If he decides to go in for a film, then what is he foregoing? What opportunity is he losing? The opportunity of working in a play. So play will be his opportunity cost. Whatever he could have earned in a play is his opportunity cost. But if he decides to work in a play and leave the movie, then whatever he could have got in the movie is his opportunity cost. Whatever opportunity he has lost, he has foregone. So keep in mind that in economics, we do have another important concept of cost, which is called opportunity cost. And I'm sure this term is nothing new to you. Remember, you have done it in the concept of marginal opportunity cost, isn't it? Wherein you had to produce two goods. So it is almost the same kind of a fundamental here that we are using. Now, in the chapter on production, you have seen that as a producer, you will undertake, I'm telling you, why am I telling you? Because I want every time you to think that you are a producer. Okay. So the production is undertaken in short run and long run. Okay. When you are in a position to change all the factors, then it is long period. But when you are not in a position to change all the factors, some factors are fixed and some are variable, then you are working in the short run. अगर आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शॉर्ट रन कॉस्ट बेयर करेंगे, अगर आप लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप लॉन्ग रन कॉस्ट बेयर करेंगे. सो नाउ कीपिंग दैट इन माइंड वी शुड गो इन फॉर some short run costs. Okay, so some fixed factors of production and some variable factors of production. In short run, we know, as I told you just now, there are some fixed factors and some variable factors. Hence, in the short run, what fixed cost shall we discuss? Total fixed cost and average fixed cost. What variable cost shall we discuss? Total variable cost and average variable cost. So let's see what it is. Very simple. Just pay little attention and you will know what it is. So here, as I showed you, that in this case, if you are discussing total fixed cost, if you are discussing total fixed cost, I'm sorry, if you're discussing fixed cost, it is total fixed cost and average fixed cost. If you're discussing variable cost, it is total variable cost and average variable cost. अगर इस total this and total this इनको अगर हम add कर दें तो we are getting total cost. Similarly, average fixed and average variable इन दोनों को अगर हम add कर दें तो we will get average cost. As simple as that. Fixed cost plus variable cost. If it is total, then you get total cost. If it is average, then you get average cost. So let's go on to each one of them separately. So total fixed costs are also known as you can see, supplementary, overhead, indirect, general, unavoidable, various names to the concept of total fixed cost. तो आप producer हैं, आपने एक फैक्ट्री लगानी, प्रोडक्शन आपने शुरू भी नहीं की, जीरो प्रोडक्शन है, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा. तो आपने प्रोडक्शन शुरू नहीं की, मान लीजिए एक मशीन लगा ली, तो जीरो प्रोडक्शन पर भी आपको उस मशीन के ऊपर खर्चा करना पड़ा. मान लीजिए 10,000 की मशीन खरीदी, तो जीरो प्रोडक्शन पर भी आपको 10,000 का खर्चा हो गया. अब आप अगर प्रोडक्शन शुरू करते हैं और इस मशीन की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है, तो चाहे आपने कुछ भी प्रोड्यूस ना करें, चाहे आप 100 करें, 200 करें, 500 करें या 1000 करें, वो खर्चा आपका बराबर रहेगा. कौन सा खर्चा? जो आपने मशीन को लगाने में किया है. सो fixed factor is incurred on fixed factors of production which do not change in the short run, and this particular cost remains same irrespective of the level of output. So whatever the output from 0 to what? See, in this particular table I've tried to show it. So whether your output was 0 या बढ़ती गई, जब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो भी आप उस मशीन को लगाने पे खर्चा कर रहे थे, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है ना. सीधी सी बात है. अब मशीन को तोड़ोगे थोड़ी आप, वो मशीन 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो आप 10 करेंगे प्रोड्यूस तो भी उसी एक मशीन का यूज करना है, और आप 1000 करेंगे प्रोड्यूस तो भी उसी एक मशीन को आपने यूज करना ही करना, और उसका खर्चा 10,000 आपका फिक्स होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. और अगर आप इसको प्लॉट करें तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ इस तरह से मिल जाएगा. इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. व्हाट डज इट मीन? कि चाहे 0 हो तो भी 10 का खर्चा, चाहे आउटपुट बढ़ती जाए 1 2 3 4 5 तो भी 10 का खर्चा. सो टीएफसी
is a horizontal straight line parallel to x-axis. It remains same at all levels of output even if output is 0. और ये खर्चा कब बेयर करना पड़ेगा आपको? अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आपने भाई मशीन चलाने के लिए एम्प्लॉइज रखे हैं, कुछ तो परमानेंट एम्प्लॉइज रखेंगे आप, है कि नहीं है? तो ऐसे में फिक्स फैक्टर्स के ऊपर आप जो भी खर्चा करते हैं, चाहे आपकी आउटपुट 0 हो, चाहे आप अपनी आउटपुट बढ़ाएं, आपका खर्चा सेम रहता है. दैट इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. देन दूसरा है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम प्राइम या डायरेक्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं. ये किस पे खर्चा करेंगे? हम वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा करेंगे. वेरिएबल फैक्टर्स कौन से? जिनको बदला जा सके, यानी जैसे जैसे आउटपुट बदलेगी वैसे वैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को भी बदलेंगे. जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल इनपुट्स की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी. जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, आउटपुट 0 1 2 3 4 5 जा रही है और 0 के बाद ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 0 5 9 12 16 26. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझना जरूरी है. क्या? अगर इसको मैं प्लॉट करूं, इस डेटा को अगर मैं प्लॉट करूं, तो आपका टीवीसी कर्व कुछ इस तरह से आएगा. इसकी स्लोप पे ध्यान दीजिएगा. देखिए मैंने इसको थोड़ा डार्कन थिकन किया हुआ है. ये झुका इंक्रीज तो हो रहा है, आउटपुट बढ़ रही जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ देखिए 0 से लेके ए तक ये वाला पोर्शन, ठीक है, 0 से लेके ए तक जो है ये डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है और ए के बाद ये इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, है ना. किसी इंसान को सोचिए ऐसे कमर झुका के और फिर सीधा खड़ा हो गया, ठीक है. सो इट इज फ्रॉम 0 to A, it increases at a decreasing rate and from A onwards it is increasing at an increasing rate. इसको हम inverted S कहते हैं. पीवीसी कर्व की शेप को हम इन्वर्टेड एस, उल्टा एस की शेप कहते हैं. डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है और ओरिजिन से शुरू हो रहा है. ओरिजिन से मतलब 0 से शुरू हो रहा है. इसका क्या मतलब है? जब आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है. अब सवाल ये होता है कि ये पर्टिकुलर शेप टोटल वेरिएबल कॉस्ट की क्यों है? पहले डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है. इसीलिए यहाँ पर आपका समझना वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यहाँ काम कर रहा है. शुरू शुरू में फिक्स्ड फैक्टर फुल कैपेसिटी में काम करता है. वेरिएबल फैक्टर से अच्छी तरह से उसका जो कोऑर्डिनेशन रहता है. तो स्टार्ट में जब आप इनपुट यूज करते हैं तो उससे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं. जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो इसका मतलब कॉस्ट घट जाएगा आपका. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड फैक्टर वेयर एंड टेयर होने लगता है और वेयर एंड टेयर होने की वजह से आपको ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाने पड़ते हैं. तो आपका जो उनके बीच की कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगती है. तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका बढ़ता जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा. नहीं क्या, जैसे हम लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, कुछ टाइम चलाते हैं तो भाई 1 लीटर में, स्कूटर की बात ले लेते हैं मान लीजिए, तो 1 लीटर में मान लीजिए वो 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर देता है एवरेज. उसके बाद और थोड़ी देर और चलता है, इंजन और खुलता है तो वो 25 किलोमीटर देना शुरू कर देता है. तो आपका 1 ही लीटर में 80 रुपए में आप 20 22 25 किलोमीटर चला लेते हैं, ठीक है ना. लेकिन जैसे ही सर्विस का टाइम आता है तो आपको लगता है अरे अभी तो पेट्रोल भरवाया था, ये फिर से क्यों रिजर्व पे दिखा रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि वही 1 लीटर पेट्रोल अब कम दे रहा है आपको माइलेज. क्यों कम दे रहा है? क्योंकि आपका जो इंजन है, आपकी जो गाड़ी है वो सर्विस मांग रही है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई दिस पर्टिकुलर कर्व, पीवीसी कर्व, फर्स्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग, ठीक है. तो आप वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स पर वेरिएबल कॉस्ट इनकर करते हैं. उसके एग्जांपल हैं रॉ मटेरियल हो, पावर हो या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो, ठीक है. तो अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम जोड़ लें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है. पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो एक फर्म या जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें.
ये हमारी आउटपुट है, ये हमारे टीएफसी का डेटा है, ये हमारा टीवीसी का डेटा है। इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है, और इनको अगर हम प्लॉट करें तो हमें इस तरह का कुछ ये यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है। देखिए साथ साथ में मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम साथ साथ में रिलेशन भी स्टडी करते जाएंगे। सो ये अगर मैं इनको प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह से जो साफ दिख रहा है आपके, देखिए टीएफसी और टीवीसी तो हमने पढ़ ही लिया। टीसी क्योंकि इन दोनों से मिलता है, और क्योंकि टीसी जीरो नहीं होता। जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता। अगर आउटपुट जीरो हो तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट तो है ही है, और इस वजह से जीरो आउटपुट होने पर भी टोटल कॉस्ट है। तो जहां से टीएफसी शुरू होता है वहीं से टीसी शुरू होता है। ये देखिए 10 पर यहीं से टीएफसी शुरू हो रहा है, यहीं से टीवीसी शुरू हो रहा है, और फिर क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है और टीवीसी चेंज हो रहा है, तो जिस तरह से टीवीसी चेंज हो रहा है उसी तरह से टीसी चेंज होगा। तो पहले टीसी भी डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा और फिर इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा। ये मैंने दो अलग अलग इसलिए दिखा दिए कि आपको साफ पता लगे कि यहाँ 10 से लेकर बी तक डिक्रीजिंग रेट है, और बी के ऊपर जो मैंने ये रेल की पटरी जैसा बनाया हुआ है, ये वाला पूरा जो स्पेस है, एरिया है, वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रिटर्न दिखा रहा है। तो टीसी और टीवीसी जो है पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इन दोनों के मान लीजिए टीसी माइनस टीवीसी कितना? टीएफसी। टीसी अगर मैं माइनस टीवीसी कर दूं तो कितना होगा? टीएफसी होगा, और टीएफसी क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टीसी और टीवीसी के बीच की डिफरेंस होती है टीएफसी, और टीएफसी क्योंकि कांस्टेंट रहता है इसलिए ये पैरेलल चलते हैं। टीसी और टीवीसी पैरेलल चलते हैं। सो आई थिंक ये ग्राफ क्लियर है आपको। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। ये ग्राफ को हम लोगों ने, टेबल को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, और तीनों के बीच की रिलेशन हमने एक्सप्लेन कर दी है। एट इनिशियली राइजेस, फिर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी टीवीएफसी के बराबर होता है, क्योंकि कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है। टीसी और टीएफसी टीवीसी कर्व्स पैरेलल चलते हैं, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस टीएफसी और टीएफसी कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? सो दिस इज एज रिगार्ड्स एज टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी तीनों के बीच की डिफरेंस। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये तो टोटल के कॉन्सेप्ट, अब हम आ जाते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट पर। किसी भी चीज की एवरेज कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंगो क्लास में एवरेज हाइट क्या है? तो एवरेज हाइट कैसे लेते हैं हम? सब बच्चों की टोटल अपॉन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो पर यूनिट होता है। वैसे ही एवरेज कॉस्ट क्या है? पूरा टोटल कॉस्ट ले लो अपॉन भाई कितना आपने प्रोडक्शन किया है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है एवरेज कॉस्ट। ठीक, सो हम एवरेज कॉस्ट को भी दो में बांट सकते हैं, जैसे हमने टोटल कॉस्ट को टीएफसी और टीवीसी में बांटा था, वैसे ही एवरेज कॉस्ट को भी हम दो में बांट सकते हैं। कौन से? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो ये उसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में बांट सकते हैं। तो जैसे हमने टीएफसी और टीवीसी अलग अलग पढ़ा, अब हम यहाँ पे एएफसी और एबीसी अलग अलग पढ़ेंगे। आपके सामने है, इट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। सो एएफसी इज टीएफसी अपॉन क्यू, जिस क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो ये रहा हमारे आउटपुट यूनिट्स हैं। टीएफसी हमारा 10 था, और अगर हम एएफसी ढूंढना हो तो टीएफसी अपॉन क्यू। तो ये अगर आप टीएफसी अपॉन क्यू ये देखें तो ये आपको एएफसी की फिगर मिल जाएंगी, और साफ दिख रहा है कि लगातार जो है एएफसी घटता जा रहा है। एएफसी लगातार घटेगा ही घटेगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, तो एएफसी ऑब्वियसली घटेगा, और उस वजह से आपका एएफसी कर्व जो है, अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग एएफसी कर्व मिलेगा। दिस विल बी द शेप ऑफ द एएफसी कर्व। नाउ अब एएफसी कर्व के बारे में हमें क्या जानना जरूरी है? सिंस टीएफसी इज कांस्टेंट, एएफसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स as output increases. AFC, now ये point is important, AFC is a rectangular hyperbola, एक ऐसा कर्व जिसके अंदर जो भी एरिया, इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं, अगर ये और इतना एरिया ये ले लूं, अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लूं ये और ये एरिया ले लूं, तो उनका एरिया विल बी द सेम एरिया अंडर दिस कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है हर जगह उसकी यही प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम कॉस्ट के संदर्भ में ले रहे हैं, इट विल बी द सेम, दैट एरिया अंडर दिस कर्व रिमेन्स द सेम। वन मोर थिंग दैट यू कैन सी,
that in case of AFC curve, it will neither touch x-axis nor will it touch y-axis. अब अगर ये AFC कर्व मान लीजिए यहाँ से आके x-axis टच करता है तो यानी जीरो पे आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो x-axis को टच नहीं कर सकता. दूसरा, AFC कर्व जो है वो y-axis को भी टच नहीं कर सकता. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, ये ऊपर चढ़ते चढ़ते भी कहीं पे भी ये y-axis को टच नहीं करेगा, ना x को करेगा ना y को टच करेगा. क्यों? At zero level of output, TFC is positive. Any positive number divided by zero is infinity. तो y को भी ये टच नहीं करेगा. यहाँ देखिए at zero TFC तो पॉजिटिव है, तो 10 upon 0 any number divided by 0 is infinity. और अगर आप इसको यहाँ पर y पे टच करा देंगे तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा फिर, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो आपका AFC curve will neither touch x-axis nor will it touch y-axis. So this is the concept of average fixed cost. अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा? सोचिए सोचिए क्या करना होगा. यस, अब हमें नेक्स्ट करना होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो जाहिर बात है टीवीसी आएगा यहाँ पर अपॉन क्यू और द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. एएफसी में क्या था? टीएफसी अपॉन क्यू. एवीसी में क्या होगा? टीवीसी अपॉन क्यू. ठीक, और इसको अगर हम शेड्यूल और डायग्राम की मदद से देखें तो क्या, ये हमने ले ली यहाँ पर सारी की सारी आउटपुट, ये हमने ले लिया अपने सारे के सारे टीवीसी फिगर्स. इनको जब हमने डिवाइड किया हमें ये मिला, और यहाँ खासियत क्या मिली कि एवीसी पहले घटा 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 यहाँ पर आकर के एक मिनिमम पॉइंट पर आकर के थोड़ा कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ना शुरू हो गया. यानी एवीसी कर्व घटा घटा घटा, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो कर्व कुछ इसी शेप का मिलेगा. तो ये घटा 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 एक मिनिमम पे आ गया और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू. यू गेट माय पॉइंट? सो क्योंकि इसमें घटना और बढ़ना दोनों दिख रहा है एवीसी में, सो एवीसी इज अ यू शेप्ड कर्व. यू देखिए, यू इसलिए जरूरी नहीं है कि पूरा ऐसे यू हो. यू का मतलब है घट भी रहा है वही कर्व और मिनिमम पर आकर के बढ़ भी रहा है. ऐसे कर्व्स को हम यू शेप कर्व कहते हैं, और एवीसी कर्व है. इट इनिशियली फॉल्स हियर, देन रिमेन्स कांस्टेंट. ये रहा 4 4 है ना, तो देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड फाइनली स्टार्ट्स टू इंक्रीज. 4 से 9 हो गया. द शेप ऑफ एवीसी कर्व कॉरेस्पॉन्ड टू द 3 phases of law of variable proportions. law of variable proportion में कौन कौन से phases थे? law of increasing returns, diminishing returns, constant returns, ये थे ना. तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर diminishing cost, फिर यहाँ नीचे आकर के constant हो रहा है, constant हो रहा है, और फिर उसके बाद increasing हो रहा है. तो law of variable proportion, इनफैक्ट law of variable proportion ही पूरे cost का guiding force है. cost curve से guiding force ही law of variable proportion है. प्रोडक्ट के कर्व्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो प्रोडक्ट कर्व्स हैं उनको मैं कहती हूँ कैप जैसे, और जो कॉस्ट के कर्व्स हैं उनको मैं कहती हूँ कटोरे के जैसे. सो एक कटोरे को आप उल्टा कर दीजिए तो वो कैप ले लेता है, उसी को सीधा कर लीजिए तो वो कटोरा हो जाता है. तो जब वो कैप है तो वो प्रोडक्शन कर्व्स हैं, और जब वो कटोरे की शेप आप उसके लेते हैं तो वो कॉस्ट कर्व्स हैं आपके. ठीक, सो दिस वाज योर एवीसी कर्व. तो अब हमने एएफसी भी कर लिया, एवीसी भी कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? अब AC is equal to AFC plus AVC. हमने पहले क्या किया था? TC is equal to TFC plus TVC. अब ये हो गया. या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? AC is TC upon Q. एवरेज है ना, मैंने आपको बताया था एवरेज हाइट होगी तो टोटल हाइट अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो अगर एवरेज कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट, बिकॉज एवरेज इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट की हमने डेफिनेशन स्टार्ट में देख ली थी. इट इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट अपॉन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. सो अगर मैं एवरेज कॉस्ट देखना चाहूं तो क्या करूंगी? आउटपुट ले लूंगी, अपनी एएफसी की सारी फिगर्स जो मैंने पहले दिखाई आपको वो ले लूंगी, एवीसी हमने कैलकुलेट किया सारी फिगर्स, और इनको अगर मैं जोड़ दूंगी तो देन आपका एवरेज कॉस्ट निकल आएगा. और यहाँ पर एवरेज कॉस्ट देखिए क्या हो रहा है? गिरा गिरा गिरा, फॉल 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 फॉल, एंड देन स्टार्ट्स टू राइज. And then starts to rise. That means it's falling and then rising. So that means what will be the shape of the curve? Falling also, rising also, U shape, isn't it? So you can see these curves that I have drawn are not to this scale. This is, I have drawn this
You can draw it to the scale, and this I have shown you that this will be the shape of the curve. Okay, because it is showing fall also and rise also. This is average cost. So as you can see, average cost is U-shaped. It initially falls, reaches minimum, rises. तो AC, अब हम लोगों ने AC में कौन से, TC में हमने कौन से किए थे, TC, TFC और TVC, है ना. अब AC में हम कौन से करेंगे, AC, AFC एंड ABC. तो अगर मैं तीनों के बीच की रिलेशन लूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है. AFC डाउनवर्ड फॉलिंग, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, टच नहीं करेगा लेकिन XY एक्सिस को. ABC यू शेप, और ABC और AFC से मिलकर जो बनेगा AC, इसीलिए वो ऊपर रहेगा इन दोनों कर्व्स के, इन दोनों को जोड़ के बनता है तो ज्यादा होगा, इसलिए ऊपर रहेगा. और इसकी भी शेप क्या है, यू शेप. तो क्या लिखा आपने, AC इज ऑलवेज अबाव ABC कर्व. ABC और AFC के ऊपर रहेगा. क्यों, बिकॉज AC इज AFC प्लस ABC. As output increases, gap between AC and ABC decreases. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है, आप देख रहे हैं AC और AB, पहले AC और ABC के बीच इतना गैप था, फिर AC और ABC के बीच इतना, फिर इतना. आप देख रहे हैं ये गैप कम होता जा रहा है, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते. क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है, AFC. AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC. और अगर AC में से मैं ABC माइनस कर दूं तो AFC बच जाता है. और AFC कभी भी जीरो नहीं होता. AFC कभी भी जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता, है ना बेटा. तो आप यहाँ पर एक एक टेबल को, एक एक कर्व को आपस में कंपेयर करेंगे, एंड एज यू कैन सी many concepts are being repeated. If once that concept is clear with you, there will be no problem at all. The question may be asked in whichever way, whichever manner, you will be able to answer. तो ये हमने दो कॉन्सेप्ट कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट कर लिया हम लोग ने, TFC और TVC उनके बीच की रिलेशन, फिर एवरेज कॉस्ट कर लिया हमने, AFC एंड ABC और उनके बीच के रिलेशन. और फाइनली कॉस्ट में जो हम अनदर कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मार्जिनलिटी का कॉन्सेप्ट जो अभी तक n नंबर ऑफ टाइम्स आप कर चुके हैं. व्हेन यू वर डूइंग यूटिलिटी यू डिड मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन यू वर डूइंग प्रोडक्ट यू डिड मार्जिनल प्रोडक्ट. Now you are doing cost, we will do marginal cost. So by now you are very well aware that marginality concept is that of an additional unit. और क्योंकि यहाँ हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, so the marginal cost will refer to addition to the total cost when an additional unit of output is being produced, when one more unit of output is being produced. The way you did marginal utility is equal to TUN minus TUN minus 1. Similarly, marginal cost here will be total cost of this unit minus total cost of earlier unit. तो अगर आप एक यूनिट की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे उस पर काउंट करेंगे कि भाई इस यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है और इससे पहले वाले यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था. उन दोनों के बीच की डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट दे देगी. या टोटल कॉस्ट अगर एक से ज्यादा यूनिट है तो भाई कैसे मार्जिनल कॉस्ट ढूंढोगे, पहले देखो टोटल कॉस्ट में कितनी डिफरेंस आई है, फिर देखो क्वांटिटी में कितनी. व्हाट डज डेल्टा मीन, डेल्टा मीन्स चेंज. तो टोटल कॉस्ट में कितनी चेंज आई है, फिर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में कितनी चेंज आई है. दोनों को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा. इसको मैं और आगे बढ़ करके और डिटेल में आपको समझाती हूँ. सो मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ TFC. मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल मीन्स एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल मीन्स चेंज, चेंज मीन्स वेरिएबल. तो सीधी सी बात है कि मार्जिनल कॉस्ट का असर जो चेंज आती है वो TFC की वजह से नहीं है, फिक्स कॉस्ट की वजह से हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, मार्जिनल कॉस्ट तो चेंज होता है. और चेंज क्या होता है, वेरिएबल. तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय TFC बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड when one more unit of output is produced, whereas TFC does not change with change in the output. तो इसलिए marginal cost is affected by changes only in the TVC, total variable cost. इसको हम बहुत सिंपल सी मैथमेटिकल डेरिवेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. मैथमेटिकल नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है. देखो आप कितना सा सिंपल है ये. आप देखिए अभी हमने जब फॉर्मूला किया तो क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट इज TCN माइनस TCN माइनस 1, और हमें पता है टोटल कॉस्ट इज TFC प्लस TVC. अब इस इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें, यानी TCN के बदले TC का फॉर्मूला लगा लें,
TCN-1 के बदले भी उसका फॉर्मूला लगा लें। तो देखिए कैसे आता है, कैसे हमें पता चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से ही इफेक्टेड होता है, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब देखिए इस TC के बदले मैंने TCN के बदले क्या लिखा, TFCN, क्योंकि TCN है ना, ये वाला यूनिट है, तो इस यूनिट का TFC प्लस इस यूनिट का TVC, TFC प्लस TVC, TFC प्लस TVC, बट nth यूनिट का यहाँ पे। और फिर दूसरा क्या आया, TCN-1, तो इस TC के बदले क्या लिखेंगे, TFC प्लस TVC, बट N-1 का TFC और TVC, यू अंडरस्टैंड। तो equation 2 को we are going to substitute in equation 1. So for this TCN we will use this, for this TCN-1 we will use this. I hope it is very very clear because it's a simple mathematical derivation. Now if I open up these brackets, what will I get, TFC ये रहा प्लस TVC ये रहा, अब माइनस प्लस माइनस होता है, सो माइनस TFCN-1 माइनस प्लस फिर माइनस होता है, माइनस TVCN-1, अब प्लस TFC माइनस TFC कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, TVCN माइनस TVCN-1, क्या बचा, TVCN माइनस TVCN-1. So marginal cost is variable cost of this unit minus variable cost of earlier unit. Now आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया होगा कि मैम आपने ये दोनों कैसे कैंसिल किए, ये प्लस और ये माइनस है तो सही, लेकिन यूनिट्स तो सेम नहीं है, ये तो n यूनिट वाला है, प्रेजेंट यूनिट है, ये तो N-1 यानी प्रीवियस यूनिट है, तो आपने प्लस और माइनस फिगर्स तो तभी कैंसिल होती हैं जब वो सेम होती हैं, लेकिन इसमें तो ये इस यूनिट की फिगर है और ये पहले यूनिट की फिगर है। यहाँ क्या ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ नोट दिया है, यहाँ क्या ध्यान रखना है हमें कि TFC चाहे वो इस यूनिट का हो चाहे वो पहले यूनिट का हो, इट इज सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो अगर यहाँ पे 10 है, इस यूनिट में 10 है, तो इससे पहले यूनिट में भी 10 होगा, इसके बाद वाले यूनिट में भी 10 होगा, तो दिस विल बी प्लस 10 माइनस 10, तो आराम से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, व्हाट रिमेन्स इज TVC. So hence proved that marginal cost, hence proved what? Hence proved that marginal cost is affected only by change in variable cost. Okay, so this is how mathematically we have proved it with the mathematical derivation. Now let us go to the schedule and the diagram to see what we are discussing when we discuss the concept of marginality. तो ये अब हम लोगों ने आउटपुट, TVC, TFC, टोटल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है TCN माइनस TCN-1 और ये मार्जिनल कॉस्ट है TVCN यानी कि यहाँ दोनों जगह मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि चाहे आप टोटल कॉस्ट ले लो चाहे आप वेरिएबल कॉस्ट ले लो, आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये फिगर हमने सारी की सारी सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, जो हम ऑलरेडी अभी एक एक करके इससे पहले ले चुके हैं। और अगर मैं टोटल कॉस्ट को लूं तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, इससे पहले वाला तो कुछ है नहीं, तो यहाँ डैश लगाया, 15 माइनस 10 है ना, दोनों के बीच क्या आया, TCN माइनस TCN-1 5, TCN माइनस TCN-1 4, TCN माइनस TCN-1 3, TCN माइनस 22, 35 माइनस 26 9। तो ये तो आपने टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट ढूंढ लिया। अब देखूं क्या मैंने ये कहा कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से मिलता है, तो देखें क्या मिल रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 5 3, 12 minus 9, should I repeat? I think yes. 5 minus 0 is 5, 9 minus 5 is 4, TVC के कॉलम पर ध्यान दीजिएगा, 12 minus 9 is 3, 16 minus 12 is 4, 25 minus 16 is 9। अब देखिए क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट सेम है या नहीं, चाहे आप टोटल कॉस्ट से ले लो चाहे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ले लो, आपकी फिगर्स सेम आ रही हैं बिल्कुल। और फिगर्स क्या बता रही हैं कि मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरा और फिर बढ़ना शुरू हो गया, फॉलिंग रीचिंग अ मिनिमम एंड देन राइजिंग, फॉलिंग रीचिंग अ मिनिमम एंड देन राइजिंग। तो ये देख करके ही समझ में आ रहा है दैट मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड। सो मार्जिनल कॉस्ट इज
U-shaped. It initially falls, reaches its minimum, and then starts. It's also U-shaped. तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किए वो मार्जिनल कॉस्ट के साथ कैसे रिलेट करते हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम टीसी और एमसी ले लें, ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टीसी कर्व था, यहाँ से शुरू होता था वाई एक्सिस से, फिर डिक्रीजिंग रेट पे होता था, फिर इंक्रीजिंग रेट पे होता था, जबकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारा, पहले फॉल करता है और फिर राइज करता है। तो यहाँ पर जब तक ये व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, देखिए क्या रिलेशन है, व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, इस पूरे एरिया में टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग। फिर व्हेन इसके बाद टीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यहां पर आकर के टीसी का डिमिनिशिंग रेट बंद हो जाता है, जहां इसका डिमिनिशिंग रेट बंद होता है वहां एमसी का मिनिमम पॉइंट हो जाता है, ठीक। व्हेन डिमिनिशिंग रेट ऑफ टीसी स्टॉप्स, एमसी इज एट इट्स मिनिमम, ठीक। उसके बाद जैसे इसके बाद टीसी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना शुरू होता है तो मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, स्टार्ट्स टू राइज। This is the relation between total cost and marginal cost. Look here, TC rises at a decreasing rate, MC falls. TC stops rising at a decreasing rate, MC is minimum. TC increases at an increasing rate, MC starts to increase, it's rising. This is between TC and MC. And now what is between TVC and MC? So ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। इसके नीचे का जो ये सारा एरिया है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप है ना, ये ऐसे यू शेप आ रहा है, इसके नीचे का जो ये सारा एरिया आ रहा है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखाता है। क्यों? बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट किससे हमें मिलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। सो अगर मैं सारे एक एक मार्जिनल कॉस्ट ले लूं, एवरी एडिशनल कॉस्ट को अगर मैं टोटल कर लूं तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। MC is addition to what? TVC when one more unit is produced. Thus TVC can be obtained as summation of all marginal cost. तो ये जो आपको तो ये दिख रहा है OPLQ, OPLQ, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये आपको, ये किसके बराबर है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, ठीक। Now one more relation which will be talking about average cost and marginal cost. You have done average cost, you have done marginal cost. So let's try and ये एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा और एक नई रिलेशन कॉस्ट कर्व्स के बीच में हमारे पास आ जाएगी। So क्या है, हमें पता है both AC and MC are derived from TC। कैसे पता है? AC is TC upon Q, पता है हमें, है एवरेज है ना, TC upon Q। और मार्जिनल क्या है, TCN minus TCN minus 1 या डेल्टा TC upon डेल्टा Q। देखिए AC and MC both are derived from TC, ठीक, and both are U-shaped. Why both are U-shaped? Because of law of variable proportion. We have already seen it will fall first, come to a minimum, then it will rise. Now, since both are derived from TC, since both are U-shaped, both means AC curve as well as MC curve. So what is the relation between the two? This is the relation between एवरेज कॉस्ट। अब देखिए ये भी यू शेप्ड, ये भी यू शेप, मैंने डॉटेड बना दिया है, क्लियर हो जाएगा कौन सा मार्जिनल कॉस्ट है, कौन सा एवरेज कॉस्ट है। अब हमें कैसे पता कि ये मार्जिनल कॉस्ट को नीचे बनाना है, फिर इसको क्रॉस करना है, फिर ऊपर करना है। यहाँ एवरेज कॉस्ट एमसी के ऊपर है, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट एमसी कर्व के नीचे है। भाई कुछ तो इसका रीजन होगा जो हमने इन कर्व्स को इस तरह से बनाया है। तो क्या रीजन है, देखिए, when MC is less than AC, MC is ये पूरे एरिया में यहाँ से लेके पूरा E तक जो MC कर्व है, it is less than AC, पूरा यहाँ A से लेके E तक ये पूरा, ये वाला पूरा एरिया जो है MC नीचे है, तो इसका मतलब it is less than AC। AC falls as output in, तो जब तक MC AC के नीचे रहता है AC गिरता रहता है। जो MC कर्व है वो AC को नीचे की तरफ पुल करता है। Here you have to know that because marginality shows per unit change, तो it shows the changes faster। पहले ही पता लगने लगता है
कि भाई अच्छा मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है, इट इज शोइंग एवरी एवरेज तो आपको टोटल को इकट्ठा करने के बाद मिलती है, मार्जिनल तो हर यूनिट के साथ बताता रहता है, हर यूनिट में होने वाली चेंज के साथ बताता रहता है कि क्या हो रहा है. सो व्हेन MC is less than AC, it pulls AC down. ठीक. When MC is equal to AC, जब ये दोनों बराबर होते हैं, देखिए कहां पर बराबर है, जहां AC मिनिमम है वहां पर MC जो है AC को कट करता है. AC के मिनिमम पॉइंट पर MC और AC बराबर होते हैं. When MC is greater than AC, अब देखिए यहाँ पे MC ऊपर आ गया, एवरेज कॉस्ट नीचे है, marginal cost is greater than average cost. Okay, so marginal cost is greater than average cost. तो इसका मतलब क्या है, marginal cost is showing changes faster. तो वो एवरेज कॉस्ट को पुल करता है ऊपर की तरफ, it pulls the AC curve upwards. So when MC is greater than AC, AC rises as output increases. The marginal cost curve lies above the average cost curve and pulls the AC curve upwards. तो यहाँ ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि जब ये फॉल कर रहा है तो MC is falling faster, इसीलिए इसके नीचे, और जब ये राइज कर रहा है so MC is rising also faster, इसलिए इसके ऊपर है. तो फॉल हो तो भी MC फास्टर दिखाता है, राइज हो तो भी MC पहले चेंज दिखाता है, फास्टर दिखाता है, इसीलिए फॉल के टाइम इसके नीचे है which shows faster fall, और राइज के समय AC के ऊपर है which shows faster rise. You get my point? Therein lies the speciality of the concept of marginality. Thus MC equal to AC, where MC intersects, AC दोनों बराबर होते हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है that AC can fall when MC is, ये हाँ, this is very nice. This particular feature I really like in this because one really has to see what's happening. AC can fall when MC is rising. However, it is possible only when MC is less than AC. अब ये what is this point saying? This is a very nice peculiar feature in relation between MC and AC. Let me go back to the diagram again. It is saying that यहाँ तो नीचे है MC, ठीक है, ये कहता है कि AC लगातार AC के गिरने के बावजूद भी MC राइज कर सकता है. अब आप कहेंगे कैसे भाई, MC तो नीचे है, तो AC फॉल कर रहा है, MC भी फॉल कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि पॉइंट B से पॉइंट E तक MC जो है ऑलरेडी राइज करना शुरू कर दिया है, जबकि AC अभी फॉल ही कर रहा है. आप देखिए A से E पॉइंट पे AC फॉल कर रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी B से E में मार्जिनल कॉस्ट राइज होना शुरू हो गया. हालांकि अभी भी ये तभी हो सकता है जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे ही है, लेकिन वो एवरेज कॉस्ट से पहले राइज होना शुरू कर दिया. मैंने आपसे कहा था ना, द चेंजेस आर शोन फास्टर बाय मार्जिनैलिटी कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर ऑलरेडी दिखाना मार्जिनल कॉस्ट ने शुरू कर दिया कि भाई अब बढ़ेगा, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद AC मिनिमम हुआ तो देखिए AC बढ़ना शुरू हो गया. तो अगर क्वेश्चन आता है कैन MC राइज इवन व्हेन AC इज फॉलिंग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस, फॉर सम टाइम इट कैन, बट क्या कंडीशन है, दैट MC कर्व शुड स्टिल बी बिलो AC कर्व, बट इट कैन राइज. जस्ट सी, यहां तक A तक तो फॉल कर रहा है, ये B तक फॉल कर रहा है, A के बाद ये फॉल कर रहा है, लेकिन ये B के बाद राइज होना शुरू कर दिया, बट MC इज स्टिल बिलो AC. दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, और इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, थॉट्स के फॉर्म में बताते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन, बट दे आर वेरी वेरी सिंपल. सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सेइंग. एंड टू एंड आवर topic and various relations between the curves is that AC cannot rise when MC is falling, because when MC falls, AC will also fall. तो AC नहीं rise कर सकता, MC फॉल कर रहा है तो AC भी फॉल ही करेगा, बिकॉज MC pulls AC curve downward. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. So this is the relation between the MC and the AC curve. So with this, children, we are through with this particular topic and the cost curves. So what all have we covered now in this? What all have we covered now in this? We have covered meaning of cost, explicit cost, implicit cost, opportunity cost, total cost divided into TFC, TVC, then average cost divided into AFC, AVC, and then we have done the marginal cost.
So keep it in mind that the chapter on cost is fully dependent on what you have done in your earlier chapter on production law of variable proportions. So I hope that this particular concept is clear, and uh, we are in a position to understand what has been happening. We are in a position to understand how the cost curves take shape. I hope your other lectures will also be extremely fruitful. Uh, keep studying.